हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग लेक्चर देख रहे हैं. दिस इज सीए हार्दिक ठक्कर. आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू प्रोफेसर नरेश सर्स एस क्लासेस, and today I will be discussing with the basic of bookkeeping and accountancy with you. First of all, congratulations to all the 10th standard students who have recently cleared their examination with the flying colors. I am sure every one of you must have scored really well and you must have exceeded your and everyone's expectations. Okay? So on that note, I welcome you all to the world of this commerce. Okay? Secondly, I'll congratulate you on choosing commerce as a field of your academics. Okay? With due respect to all the other courses. Okay? Being a personal bias, मैं तुम लोग को बोलूंगा कि this is the best decision that you could have taken entering into the commerce field. ठीक है? Because the number of options and the number of good options that you are going to get in this entire thing is in this entire field is phenomenal. ठीक है? You will be spoiled for choices. So, but today what we are going to study is something that is going to stay with you throughout your academic life. ठीक है? तुम कौन सा भी कोर्स चूज करो, ठीक है, कौन सा भी कोर्स चूज करो, बट ये जो सब्जेक्ट है जो हम आज पढ़ने वाले, that is going to stay with you throughout. Okay? So what is important for you is to be very clear, very thorough with this subject. ठीक है? And I at my end promise you that I will be delivering my best to make sure that the basic fundamental, जो fundamental base बनना होता है, ठीक है, वो एकदम strong बने तुम्हारा. Because अगर building strong, base strong बना होगा, तब जाके building तुम कितनी भी बड़ी बनाओ उसको problem नहीं होगा. समझ में आ गया? But if the fundamental is little shaky, तो ऊपर कितने भी माले तुम ऐड करो, there is always a risk. है ना? So I promise you that I will put my best efforts and hopefully we will have a great journey of understanding and learning this subject together. ठीक है? चलिए. So the subject that we are starting today, let me introduce the name of the subject to you. ठीक है? The name of the subject is bookkeeping and accountancy. Bookkeeping and accountancy. ठीक है? आई एम श्योर कि तुम लोग ने कॉमर्स का स्ट्रीम चूज किया है. ठीक है? सो यू माइट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट कि हम अकाउंट्स पढ़ने वाले, अकाउंट्स पढ़ने वाले. ठीक है? बट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज नॉट अकाउंट्स, इट इज bookkeeping and accountancy. ठीक है? There are two separate words which mean a lot of difference. It has a lot of difference. We will understand both of them gradually. ठीक है? One disclaimer before I begin. ठीक है? Many of the students who might be watching this video, हो सकता है कि तुम लोग ने अकाउंट्स अपने स्कूल लाइफ में ऑलरेडी पढ़ा हो. ठीक है? There are many state boards which are allowing accountancy as a subject in their school career also, in their school curriculum also. But you have to understand, for those students, ठीक है, there are so many students who might not have studied, who might not have had an option, या तो फिर उनके पास ऑप्शन होगा बट उन्होंने चूज नहीं किया होगा. ठीक है? सो वट एवर द रीजन मे बी, आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई विल स्टार्ट अज्यूमिंग कि तुमको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है. समझ में आ गया? इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अ लॉट ऑफ अकाउंट्स, इफ यू ऑलरेडी नो द थिंग्स दैट आई एम about to teach, then consider it as a revision. ठीक है? Because I will be teaching from the standpoint that every one of you who is watching this video is a complete newcomer who is not having any idea about the subject. ठीक है? चलो. So on that note, दो important terms मैंने introduce कर दिए तुम्हारे सामने. It is bookkeeping and accountancy. ठीक है? Let us talk about the evolution of this subject. और ये subject क्यों important है? Let us imagine a situation. Imagine क्या? ठीक है? हुआ ही होगा तुम्हारे साथ. पूरे साल में जो भी तुम लोग को हर बार टीचर पढ़ाती थी तुम लोग को क्लास के अंदर, तो क्या सारी की सारी चीज सिर्फ जबान याद रखते थे क्या तुम लोग कि हाँ ठीक है मैम पढ़ा लो, एवरीथिंग इज गेटिंग रजिस्टर्ड ओवर हियर. ठीक है? आप बोलो, हम बस सुन लेंगे और बाद में जाके एग्जाम में लिख देंगे डायरेक्टली. ठीक है? वी हैव अ वेरी फोटोग्राफिक मेमोरी. अब जो बोलोगे सब हम याद रख लेंगे. ठीक है? थ्रू आउट द ईयर आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, जून के महीने में आपने जो पढ़ाया था वो हमको मार्च के महीने तक याद रहेगा एग्जाम देने तक. ठीक है? क्या ऐसा हुआ था क्या? ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट.
whenever teacher was teaching something, ठीक है, what did you do? You had the running notes with you, ठीक है, बहुत सारे नोट्स टीचर ने तुमको लिखवाए होंगे, बहुत सारे नोट्स तुमने खुद लिखे होंगे, बहुत सारे नोट्स तुम्हारे ट्यूशन क्लासेस वालों ने तुमको लिखवाए होंगे, और एक ही चीज तुमको 10 बार लिखाई होगी। समझ में आ गया? Why do we do that? Why do we do that? Because friends, it is very important that whatever is happening, ठीक है, जो भी हो रहा है तुम्हारे एकेडमिक लाइफ में, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना, उसका एक प्रॉपर फ्लो होना, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमेजिन तुम्हारे पास एक भी बुक्स ही नहीं है, कोई रेफरेंस मटेरियल ही नहीं है, एग्जाम के दिन पे क्या करोगे? ठीक है ना, हाउ विल यू एनालाइज, हाउ मच यू रिमेंबर, हाउ विल यू नो दैट वॉट एवर हैज बीन टॉट, ठीक है, क्या क्या पढ़ा है, कैसे याद रहेगा तुमको? ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज एवरीथिंग। सो वॉट एवर हैज हैपेंड इन योर स्टूडेंट लाइफ, एवरीथिंग, हर एक सब्जेक्ट के तुमने बहुत सारे नोट्स लिखे, ठीक है, ताकि वो नोट्स को तुम रेफर कर सको। देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर और दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैज एक्चुअली बीन टॉट, ठीक है, एंड यू विल हैव अ रेफरेंस एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट अभी बिजनेस में अप्लाई करो। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट बिजनेस में अप्लाई करो। अभी कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? द लिटरल मीनिंग ऑफ द कॉमर्स इज ट्रेड, बिजनेस, धंधा। समझ में आ गया? तो यहां पे जो भी हम बिजनेस करेंगे, ठीक है, अभी ये सब्जेक्ट जब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यू हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अ बिजनेसमैन। ठीक है, हमेशा बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर मैं धंधा कर रहा होता तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को मैं किस तरीके से रिकॉर्ड करता, इसमें मेरा कितना फायदा है, इसमें मेरा कितना नुकसान है। ठीक है, सो योर एंटायर अप्रोच हैज टू बी ऑफ अ बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर बुलाते हैं हम उसको। ठीक है ना, तो उस एंगल से सोचो, धंधावाड़ा छो तुम्हें बता। ठीक है, हमारी गुजराती की लैंग्वेज बोलते हैं धंधावाड़ा छो बता। क्लियर? सो जस्ट कीप दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड व्हेन यू आर स्टडीइंग द सब्जेक्ट। क्लियर? So अभी जब भी मैं सैलरी बोलूं, I'll just give you an example as to how your approach has to be different while studying this subject. ठीक है? If I say the word salary, पगार, ठीक है, if I say the word salary और पगार, तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? It is something that we receive, कि चलो हमको सैलरी मिला, ठीक है, हमने पैसा कमाया, हमको हमने सैलरी अर्न किया। So the moment I say the word salary, ठीक है, most of you, ठीक है, most of the students will have a perception that it is something that we receive. समझ में आ गया? लेकिन when we are talking about bookkeeping and accountancy, यहां पे we are the businessmen, ठीक है, हम सैलरी अर्न नहीं करते, हम सैलरी देने वाले लोग हैं। समझ में आ गया? हम सैलरी कमाने वाले नहीं, हम सैलरी देने वाले लोग हैं, हम बिजनेसमैन लोग हैं हम। समझ में आ गया? तो अपना जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके लिए सैलरी इनकम है, लेकिन तेरे लिए आज से सैलरी क्या होगा? एक्सपेंस होगा, क्योंकि तू प्रॉफिट कमाने वाला है, तू बिजनेस करने वाला है, तू सैलरी वाला नहीं है। समझ में आ गया? सो दैट इज द पोजीशन दैट यू आर इन, सो हैव दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच। क्लियर? चलिए, तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन दैट आई वाज डूइंग, स्कूल में तुम लोग सब नोट्स बनाते थे, सेम लॉजिक अप्लाइड इन द बिजनेस। पूरे साल में बिजनेस में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं? ठीक है, बिजनेस में लेट अस से आई एम अ ट्रेडर ऑफ, लेट अस से आई ओन अ मोबाइल शॉप, टॉप 10 मोबाइल शॉप है मेरा। ठीक है, तो वहां पे व्हाट विल आई डू? वहां पे आई विल परचेज द सेल फोन डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। समझ में आ गया? और मैं क्या करूंगा? एंड आई विल सेल इट टू द कस्टमर। मेरा एक शॉप है, ठीक है, आई बाय द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और द कंपनी। ठीक है, मतलब जो भी होगा होलसेलर के पास से आई परचेज, एंड रिटेल शॉप में मैं उसको क्या कर देता हूं? कस्टमर को सेल कर देता हूं। ठीक है, नाउ दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस आई एम इन। ठीक है, अब ये बिजनेस में कितने सेलफोन्स हमने परचेज किए, कौन से कंपनी के सेलफोन्स हमने परचेज किए, कितनी क्वांटिटी में परचेज किए, कितने प्राइस में परचेज किए, ठीक है, कितने प्राइस में हमने उसको सेल किया, कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का ध्यान नहीं रखते तो कैसा होता है अभी पता चला होगा ना तुमको, एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मतलब है ना, चलो, सो इट हैज मेड अ होल इन द पॉकेट ऑफ एवरीवन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये सब जो है, इज इट पॉसिबल फॉर वन सिंगल पर्सन, ठीक है, टू रिमेंबर एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग इन द बिजनेस? ठीक है, द आंसर इज ऑब्वियसली नो, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है, तो क्या करने का फ्रेंड्स? तो क्या करने का? उसको रिकॉर्ड करने का। ठीक है, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? कीप द बुक, एक बुक रखो ना। ठीक है, बुक कीपिंग मतलब कीप द बुक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। बुक कीपिंग इज कीपिंग द बुक, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग स्कूल में डेफिनेशन।
ठीक है, आंसर आता नहीं है लेकिन 2 मार्क का है, कुछ तो लिखना पड़ेगा, 1 मार्क का है, कुछ तो लिखना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज द वे ऑफ कीपिंग द बुक, है ना. चलो, तो इट लिटरली ऑल्सो मीन्स दैट थिंग, लेकिन इसका एक डिटेल में डेफिनेशन है जो अपन 5-10 मिनट में आगे पढ़ेंगे अपन. ठीक है, सो लेट अस व्हाई नॉट कीप अ बुक. ठीक है, चलो तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से हमने लिटरली भी ले लिया, तो व्हाई नॉट कीप अ बुक. ये बुक में क्या करेंगे, जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, पूरे साल के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर हो गया एकदम, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे. सर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है? सर क्यों रिकॉर्ड करना है? ठीक है ना, छोड़ो ना सर, इतना मगजमारी क्या करने का. ठीक है, पैसा हम लोग दे रहे, गुड्स आ रहा है, माल आ रहा है, हम लोग बेच रहे, 2 वक्त का रोटी खा रहे, छोड़ो ना सर, बस हो गया, इतना झंझट काय को करने का, क्यों रिकॉर्ड करने का ये. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग? व्हाई डू यू नीड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग इन द बिजनेस? ठीक है, व्हाई डू यू थिंक क्यों रखना चाहिए अपने को रिकॉर्ड? सबसे पहले एक सिंपल बात बताता हूं मैं तुम लोग को, व्हाट इज द मेन इंटेंशन of doing a commercial business. What is the main intention behind doing a commercial business? अगर तुम धंधा कर रहे हो तो what is your sole intention? सबसे major intention, major driving factor, that is to make the profit. समझ में आ गया? Let us admit everyone is here to make the profit. धंधा कर रहे हो तो धंधा क्यों कर रहे हो? Profit है इसके लिए. That is one of the major driving factor. ठीक है ना, उससे तुमको किक मिलता है, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो सब बाद में गए. ठीक है, बट मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर व्हाइल डूइंग एनी बिजनेस. समझ में आ गया? तो हमको क्या पता करना है कि ये बिजनेस जो हम कर रहे हैं, ये बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. व्हाट इज द प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड और व्हाट इज द लॉस दैट यू हैव इनकर्ड इन द बिजनेस. ठीक है, अगर तुम ऐसे बिजनेस किए जा रहे हो, कुछ रिकॉर्ड नहीं आता, पता नहीं चल रहा है, तो चलने दो, 2 वक्त का रोटी मिल रहा है. ठीक है, तो दैट इज नॉट द करेक्ट एटीट्यूड. व्हाट इफ यू आर मेकिंग अ लॉस? ठीक है ना, व्हाट इफ तुम्हारे एक्सपेंसेस जो है वो कवर ही नहीं कर पा रहे तुम्हारे सेल के पास से, तो ये पता होना चाहिए ना तुमको. हाउ विल यू नो? बाय कीपिंग अ रिकॉर्ड. ठीक है, तो हमको क्या जानना है, दैट व्हाट इज द प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो ये प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए फ्रेंड्स अपने को किसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा? वी नीड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम. कितने हमारे खर्चे हो रहे, कितनी हमारी इनकम हो रही है. समझ में आ गया? कितने हमारे खर्चे हो रहे, कितनी हमारी इनकम हो रही है. क्लियर? और 2 टर्म्स यूज करूंगा, एक्सप्लेन बाद में करूंगा, अभी यूज कर देता हूं. ठीक है, एक्सप्लेन बाद में करूंगा, अभी मैं लिख लेता हूं. ठीक है, व्हाट आर अवर एसेट्स एंड व्हाट आर अवर लायबिलिटीज. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म इन डिटेल. ठीक है, एक्सपेंस जो है ना उसका भी एक डेफिनेशन है, इनकम जो है उसका भी डेफिनेशन है, प्रॉफिट डेफिनेशन है, एसेट लायबिलिटी, हर एक चीज को एग्जॉस्टिवली सब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है. समझ में आ गया? ऑब्वियसली एक्सपेंस मींस द जनरल आइडिया दैट यू एंड मी नो, खर्चा हुआ एक्सपेंस है. ठीक है, बट उसको हम लोग ने प्रॉपर्ली डिफाइन किया है बुक कीपिंग के अंदर. ठीक है, सो एज एंड व्हेन वी गो अहेड वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म. अभी मैं तुम लोग को एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू के व्हाट लाइज इन स्टोर फॉर यू. ठीक है, गोइंग फर्दर, चलो तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ये पता करना पड़ेगा, लॉस हुआ है ये पता करना पड़ेगा. उसके लिए हमको क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? उसके लिए हमको ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, हमारी इनकम कितनी हो रही है. ठीक है, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज कितनी है. क्लियर? उसके बाद और क्या रीजन हो सकता है? एवरी बिजनेसमैन, ठीक है, जो भी बिजनेस करता है, अगर वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, तो उस प्रॉफिट का एक पोर्शन जो होता है, उस प्रॉफिट का एक पोर्शन जो होता है वो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. समझ में आ गया? अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट. ठीक है, व्हाट डू यू कॉल दैट पोर्शन दैट इज पेड टू द गवर्नमेंट? करेक्ट, as many of you must have rightly pointed out,
इट इज द टैक्स। टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है फ्रेंड्स? टैक्स तुम्हारे प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, कि तुमने इतना प्रॉफिट कमाया तो गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा इतना प्रॉफिट कमाया, थोड़ा हमारे साथ नहीं बांटोगे? ठीक है ना, थोड़ा हमारे साथ नहीं बांटोगे पांडे जी, तो देना पड़ेगा ना उनको थोड़ा प्रॉफिट। ठीक है, अभी कोई लोग ये बोलते हैं कि सर हम मेहनत कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, हम पैसा कमाते, अपनी मेहनत से पैसा कमाते, गवर्नमेंट को हम उसमें हिस्सा क्यों दे? गवर्नमेंट क्या हमारा पार्टनर है क्या? गवर्नमेंट क्या हमारा जीजा है या दामाद है क्या? समझ में आ गया? गवर्नमेंट क्या सुंदर है और मैं जेठालाल में उसको पैसा दूंगा? उसके लिए मैं क्यों खर्चा करूं, उसको मैं क्यों दूं पैसा? है ना, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। ठीक है, बट यहां पे व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड पेइंग द टैक्सेशन? पहला तो है मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या कि अगर तुम इस कंट्री में, इस लैंड पे अगर तुम बिजनेस कर रहे हो और उससे अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो क्या तुम्हारा यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि उसका कुछ हिस्सा तुम कंट्रीब्यूट करो अपनी देश की प्रगति में? है ना, बराबर ना? तुम तो जवान की तरह तुम तो लड़ने नहीं जा सकते, बट वो जवान को पगार देने में तुम थोड़ा सा अपना हिस्सा दे सकते हो ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो एक जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, दैट मॉरल ऑब्लिगेशन इज अ टैक्स। समझ में आ गया? बट यहां पे मॉरल ऑब्लिगेशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया में मॉरल्स, ठीक है ना, बहुत जगह पे मॉरल्स तो क्या सर, ठीक है ना, हाँ ठीक है, थोड़ा हम पश्चाताप कर लेंगे लेकिन हम भरेंगे नहीं पैसा। समझ में आ गया? तो यहां पे टैक्स पे करना एक मॉरल ऑब्लिगेशन तो है ही, बट इट इज ऑल्सो अ लीगल ऑब्लिगेशन। समझ में आ गया? इट इज ऑल्सो लीगल ऑब्लिगेशन कि अगर तुमने इतना प्रॉफिट कमाया है तो लॉ के हिसाब से तुमको इतना अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? व्हाट इज द लॉजिकल जस्टिफिकेशन? व्हाट इज द लॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ पेइंग द टैक्स? तुम ऐसा बोलोगे कि सर हमने अपना मेहनत करके पैसा कमाया, हम उसमें से पैसा गवर्नमेंट को क्यों दे? तो दैट इज नॉट अ राइट अप, दैट इज नॉट अ राइट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। ठीक है, अभी मैं यहां पे अगर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए अगर अपनी गाड़ी में आया, तो वो गाड़ी मैं हाईवे में चला के आया, तो वो हाईवे किसने बनाया? वो हाईवे किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया ना। ठीक है ना, तो उसका मतलब ये जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, ये बिजनेस का जो परमिशन दिया है, ठीक है, जो भी लीगल लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है, ठीक है, एंड एवरीथिंग, वो सब कहां से किया? वो सब किसने दिया हमको अप्रूवल? गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? तो लाइसेंस हो गया, अप्रूवल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक यूटिलिटीज, तो ये सारा फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है हमको? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर गवर्नमेंट वो कंटिन्यूअसली सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करते रहे, तो वो पैसा अल्टीमेटली रिकवर तो सिटीजन के पास से ही करना पड़ेगा। तो दैट पोर्शन विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द सिटीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज टैक्सेशन। क्लियर हो गया एकदम? सो टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी आने वाली है, ये पता करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, प्रॉफिट जानना है, एक्सपेंस जानना है, इनकम जानना है, ठीक है, एसेट लायबिलिटी कितना होने वाला है, ये सब जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे साल में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको हमको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया एकदम? ओके, गोइंग फर्दर। सर अकाउंट्स हम कितने टाइम के लिए बनाएंगे, मतलब हम कितने साल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे एक साथ? ठीक है, जैसे एकेडमिक में भी हर 12 मंथ्स में, हर 12 मंथ्स में ईयर चेंज होता है ना, हर 12 मंथ्स में ईयर चेंज होता है कि भाई चलो मतलब तुम 9th स्टैंडर्ड में थे, एक साल हो गया 12 मंथ्स, बाद में अभी तुम 10th में चले गए। समझ में आ गया? सो जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम जहां पे हर चीज को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, तो दैट स्टैंडर्ड पीरियड एवरीवेयर ग्लोबली इट इज एक्सेप्टेड टू बी द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, ग्लोबली हम कितना फॉलो करते हैं? पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और 1 ईयर। ठीक है, मतलब हर 12 महीने में हम एक बार रुकते हैं, हम चेक करते हैं कि लास्ट 12 मंथ्स में, ठीक है, लास्ट 12 मंथ में हमने क्या झंडे गाड़े। ठीक है, लास्ट 12 महीने में हमने क्या झंडे गाड़े। ये 12 महीना ही सर क्यों? 12 महीना ही क्यों? बिकॉज इट इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड जनरली एक्सेप्टेड पीरियड के भाई इतने टाइम में अपना एक फाइनल समरी ड्रॉ करके फाइंड करो कि भाई तुमने क्या अचीव किया है लास्ट ईयर में। समझ में आ गया? तुम लोग को समझने वाली लैंग्वेज में बोलूं तो अपन बोलते हैं ना कि क्या पूरा 12 महीना धंधा क्या उखाड़ा गया तूने। समझ में आ गया? तो वो उखाड़ा कितना और क्या कमाया, ठीक है, वो कितने टाइम के बाद एनालाइज करने का? 12 मंथ्स। समझ में आ गया? अभी नाउ व्हाई 12 मंथ्स? एज आई टोल्ड यू इट इज अ जनरली एक्सेप्टेड पीरियड कि जिसके बाद हमको एक पॉज लेने का, चेक करने का कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। समझ में आ गया? अभी तुम बोलोगे सर हमारा एग्जाम भी 12 महीने में क्यों होता है? वो एग्जाम 6 महीने में भी हो सकता था, वो एग्जाम 2 साल के बाद भी हो सकता था।
हो सकता था, ठीक है, लेकिन पहले से जो चला आ रहा है और लोगों को लग रहा है कि 12 मंथ्स इज अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गया? 12 मंथ्स इज अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। तुम्हारा जो प्रोग्रेस मेजर करना है, तुम्हारा जो प्रोग्रेस एनालाइज करना है, वो प्रोग्रेस एनालाइज करने के लिए 12 महीने का जो टाइम होता है वो एक सफिशिएंट टाइम होता है। अगर तुम हर 2-2, 3-3 महीने में एकदम फाइनल एग्जाम लेने लग गए, ठीक है, तो बच्चा एग्जाम को सीरियसली लेगा क्या? नहीं लेगा ना। ठीक है, अभी तुम बोलोगे सर हमारे तो क्लास में रोज हर हफ्ते टेस्ट होता था, सर ट्यूशन में हर हफ्ते टेस्ट होता था। एक पॉइंट के बाद तुमने उसको सीरियसली लेना बंद कर दिया ना, है ना, कि क्या हर हफ्ते टेस्ट होता है, छोड़ो देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, लास्ट में कब डर लगता है? जब मार्च में एग्जाम होता है, जब मार्च अप्रैल में एग्जाम होता है, ठीक है, तो जनवरी के बाद डर लगना स्टार्ट होता है ना, क्योंकि वो मेन एग्जाम है। समझ में आ गया? सो उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम हर 2-2 महीने में रिकॉर्ड मेंटेन करके समराइज करोगे तो धंधा कभी करोगे, इसी में पड़े रहोगे तो 2-3 महीना 4-5 महीने में नहीं करने का। समझ में आ गया? सर कोई बोला तो 1 साल में भी करने की क्या जरूरत है, करो 3 साल के बाद। समझ में आ गया? लेकिन 3 साल तुमको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया? अगर मान लो तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर मान लो तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है और तुमने 3 साल तक कंटिन्यूस बिजनेस चलने दिया और 3rd ईयर के बाद जब तुमको पता चलेगा कि हम तो यार पहले ही साल से लॉस कर रहे थे, तो कितना ऐसा मतलब एकदम दुख हो जाएगा ना, एकदम, है ना, ऐसा जीव बढ़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, ऐसे एकदम कलेजा जल जाएगा, अरे यार ये क्या कर दिया हमने, पहले अगर चेक कर लिया होता 11-12 महीने के बाद अगर एनालाइज कर लिया होता तो अपने को पता चल जाता कि वी आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, हम वी कुड हैव स्टॉप्ड द बिजनेस। या तो हम बिजनेस को बंद कर सकते थे, या तो हम बिजनेस में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते थे जिससे हमारा बिजनेस वापस रिवाइव हो सके, लेकिन इसमें से हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हमने 3 साल तक उसको ऐसे ही चलने दिया और 3 साल के बाद मालूम पड़ा, ठीक है, कि अरे यार गड़बड़ हो गई है, तो 3 साल हमारे बर्बाद हो गए। समझ में आ गया? सो नॉट टू लॉन्ग एंड नॉट टू क्विकली। ठीक है, कोई भी चीज को एकदम जल्दी जज नहीं करने का और कोई भी चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगाने का, फिर चाहे वो कोई चीज हो या फिर चाहे वो कोई इंसान हो। ठीक है, नेवर जज एनीवन टू क्विकली और ऑल्सो डोंट गिव समवन अ लॉट ऑफ योर टाइम। रीजनेबल, समझ में आ गया? तो व्हाट इज दैट रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम? 12 मंथ्स और 1 ईयर। इसमें तेरे को पता चल जाएगा कि तुम सही जा रहे हो या नहीं। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को, इस मतलब इस सिचुएशन को अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है विच इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी, जिस कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स और 1 ईयर यू हैव टू टेक अ पॉज, अकाउंट हैज टू बी ड्रॉन अप टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। क्लियर हो गया एकदम? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बुक कीपिंग का नीड क्या होता है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन में बता रहा हूं, मैंने मतलब बताया, डेफिनेशन नहीं बताया तुमको। ठीक है, क्यों रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, वो मैंने बताया तुम लोग को, और कितने इंटरवल के बाद रिकॉर्ड करना चाहिए ये बताया मैंने तुमको। क्लियर? सर अभी ये जो 12 मंथ्स है, सर अभी ये जो 12 मंथ्स है ये सबके लिए सेम होते हैं क्या? सर ये 12 मंथ सबके लिए सेम होते हैं क्या? इसके लिए मैं तुमको एक चीज बताऊंगा। आमतौर पे, ठीक है, आमतौर पे वैसे 12 मंथ्स तुम्हारे कोई भी 12 मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है, बट नॉर्मली इंडिया के अंदर 2 टाइप के ईयर एकदम फेमस है जो एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, दोज आर एक्सेप्टेड बाय द लॉ। ठीक है, पहला जो होता है, ठीक है, एक होता है विच इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एंड दूसरा होता है जिसको हम बुलाते हैं कैलेंडर ईयर। दूसरा हम होता है उसको हम बुलाते हैं कैलेंडर ईयर। ठीक है, सर फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर का मतलब पहले बता देता हूं मैं तुमको। कैलेंडर ईयर मतलब सिंपल है, ठीक है, तुम्हारा कैलेंडर कहां से कहां तक का छपता है? जैन से लेके दिसंबर तक, है ना। 31st को पार्टी करने के बाद कैलेंडर चेंज होता है ना, ठीक है ना। तुम्हारे पापा का जहां पे पहचान है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे घर पे नया कैलेंडर आता है, किधर बैंक से किधर बिजनेस से, ठीक है ना कहीं से नया कैलेंडर आता है। तो वो कैलेंडर नया कब टंगाते हैं हम? 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को चलाते हैं, 31 को फाड़ के उसका सेवपुरी बनाते हैं उसका। ठीक है, चलो, तो जैन टू दिसंबर ये जो ईयर है इसको हम क्या बुलाते हैं? कैलेंडर ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? सर फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? इंडिया में जो है ना फाइनेंशियल ईयर को ज्यादा वर्ड दिया जाता है। ये कैलेंडर ईयर जो है ये तो ब्रिटिश अंग्रेजों वाला ईयर है ना, ये कैलेंडर ईयर तो अपन 31 को बनाते हैं अपन,
ठीक है ना। अभी तो इंडिया में भी ऐसा हो गया कि भाई हम तो ब्रिटिश बराबर ना, उन लोग चले गए औलाद छोड़ के, वैसा है अपन 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, जितना दिवाली। वरना इंडिया का देखने जाएंगे तो इंडिया में तो बहुत अलग अलग न्यू ईयर ना, पारसी लोग का अलग रहता है, मराठी लोग का, महाराष्ट्रियन लोग का अलग रहता है, गुजराती लोग का अलग रहता है, सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो सब लोग ने मिलकर क्या डिसाइड किया, छोड़ो किसी का भी फॉलो नहीं करेंगे, अपन अंग्रेजों वाला फॉलो करेंगे, बराबर ना। तो पार्टी करने के लिए 31 दिसंबर ठीक है, लेकिन जब तुम अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, तो इंडिया के अंदर अकाउंट्स अगर तुमको बनाना है तो व्हाट इज द मोर एक्सेप्टेड एंड व्हाट इज द मोर प्रिफर्ड वे ऑफ फॉलोइंग 12 मंथ्स, इट इज अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग, जिनको नहीं पता उनको बताता, तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है इट स्टार्ट्स ऑन 1st of April and ends on 31st of March every year, ठीक है। इट बिगिंस ऑन 1st of April and it ends on 31st of March। तो ये जो 12 मंथ्स है इसको हम बुलाते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो हम बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो कर सकते हैं, हम बिजनेस में कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सर आपके हिसाब से कौन सा फॉलो करना ज्यादा बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी तुम जिद करके मेरा ओपिनियन लेना ही चाहते हो, ठीक है, सो आई वुड से दैट इट इज बेटर दैट यू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गया। चलो, तो पीरियोडिसिटी 12 मंथ्स वो कंफर्म है, 12 मंथ्स वो कंफर्म है, वो 12 मंथ्स कौन सा होगा वो तुम चूज कर सकते हो। समझ में आ गया। फाइनेंशियल ईयर, इट कैन बी अ कैलेंडर ईयर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, अभी मैंने बेसिक मतलब तो बता दिया तुमको, ठीक है, बेसिक मतलब तो बता दिया। अब इसके बाद सर बुककीपिंग का अभी इंट्रोडक्शन, ये बुककीपिंग का पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, बुककीपिंग का जो सिस्टम है वो आया किधर से, ओरिजिनेट कहां से हुआ, किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करने का, ठीक है। अभी तुम जैसे रिकॉर्ड करते हो कि भाई सर जो इनकम है तो ऐसा प्लस 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 करने का, एक्सपेंस है तो ऐसा माइनस 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 करने का, तो प्रॉफिट आ जाएगा। एक्सपेंस माइनस इनकम करते, इनकम माइनस एक्सपेंस करते तो प्रॉफिट आ जाता है। हमने मैथ्स में पढ़ा है सर, क्या यार सर, है ना सर, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, ये क्या प्लस माइनस करने को नहीं आएगा क्या हमको, सर क्या आप भी बात करते हो, ठीक है। लेकिन तुमको इस तरीके से प्लस माइनस करके इस तरीके से अपने को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। वो तो मैथ्स होता है, ठीक है, वो मैथ्स तो पढ़ लिया ना तूने, मैथ्स तो पढ़ लिया तूने, ठीक है, अभी भी पढ़ोगे, बट इस तरीके से अपने को रिकॉर्ड नहीं करने का, ठीक है। देयर इज एन एंटायर सिस्टम, एक पूरा अलग तरीके से सिस्टम इन प्लेस है, और वो सिस्टम को, वो रूल्स को फॉलो करने के बाद अपन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है सर, ये सिस्टम कहां से इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बहुत सेंचुरीज पहले तुम लोग ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य करके एक किंग था, एम्परर था, वो पढ़ा होगा ना तुमने। उसका जब डायनेस्टी चलता था तब देयर वाज अ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य नाम करके एक मिनिस्टर था। वो मिनिस्टर ने एक बुक लिखा था विच वाज कॉल्ड एज अर्थशास्त्र, समझ में आ गया। चलो सर हमको तो नहीं पढ़ा है हिस्ट्री में ये, ठीक है ना, लेकिन तुम तभी अकाउंट्स नहीं पढ़ने वाले थे ना, और अपने को वैसे भी जो जानने वाली हिस्ट्री है वो तो बताई नहीं जाती है ना अपने को, है ना, वो थोड़ा सा सैड बात तो है, क्लियर। चलो कोई बात नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना होगा तुमने, कौटिल्य का नाम शायद नहीं सुना होगा, ठीक है, लेकिन उसने, वो प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने क्या लिखा था, एक बुक लिखा था विच वाज कॉल्ड एज अर्थशास्त्र। वो अर्थशास्त्र में पहली बार, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम दिया गया था वो बुक के अंदर, समझ में आ गया। बट दैट वाज अ वेरी एंशिएंट सिस्टम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो डेवलप होते गया, आगे बढ़ते गया, उसमें इंप्रूवमेंट होते गया, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, इन द ईयर 1494, there was a person by the name Luca di Borgo पैसोली, समझ आ गया, पैसोली, कोई पैसियोली बोलेगा इसको, कोई पैसोली बोलेगा, समझ में आ गया। जिसका ग्रामर बहुत अच्छा होता है वो बोलता है ना कि सर दो अगर सपोज वॉवेल्स बाजू बाजू में आते हैं ना सर, तो पहला वाला वॉवेल प्रोनाउंस नहीं करते, ऐसा सब होता है। तुमने जो रेनन मार्टिन के जो एकदम फेवरेट खास लोग होते हैं ना, उन लोग ऐसा सब बुलाते हैं, ठीक है। चलो
बट ऐसा कोई ऐसा मेरे जैसा गुजराती मीडियम वाला रहेगा, ठीक है, तो तुम लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, पेसियोली भाई बुलाने का, बराबर ना, लुका बाई डी बर्गो पेसियोली, समझ में आ गया। सो दिस पर्सन, ठीक है, दिस पर्सन ही वॉज एन इटालियन मर्चेंट, ठीक है, वॉज एन इटालियन मर्चेंट, मर्चेंट मतलब ट्रेडर, ठीक है, तो इटालियन ट्रेडर था लुका डी बर्गो पैसोली, ठीक है। ये पर्सन जो था, ठीक है, दिस पर्सन इज कंसिडर्ड एज, दिस पर्सन इज कंसिडर्ड एज पप्पा ऑफ बुक कीपिंग, दिस पर्सन इज कंसिडर्ड एज पप्पा, फादर ऑफ बुक कीपिंग, बिकॉज ही इज द पर्सन who introduced something called as, he introduced something called as double entry system of bookkeeping. He introduced something called as double entry system of bookkeeping. क्लियर हो गया एकदम। डबल एंट्री सिस्टम, सर क्या होता है ये डबल एंट्री सिस्टम? टेंशन मत लो रे, तुम लोग तो घाई कर रहे हो बहुत, पढ़ाएंगे, यही सब तो पढ़ने का अपने को, समझ में आ गया। लेकिन ये जो नाम है, ठीक है, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लुका बाई डी बर्गो पैसोली, भाई मत लिखना बीच में, ठीक है, वो सिर्फ ऐसा संबोधन करने के लिए होता है, ठीक है, मन में भाई बोलना, लिखना नहीं, ठीक है। Who was he? He was an Italian merchant. He is considered as father of bookkeeping. ठीक है। Why is called as father of bookkeeping? Because उसने एकदम ऐसा एकदम लैंडमार्क काम कर दिया, उसने क्या कर दिया, इसकी पूरे ऐसा जज्बात बदल दिए, ठीक है ना, हालात बदल दिए, माहौल बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ठीक है ना। और वो जज्बात बदल के उसने क्या कर दिया, उसने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। आज तक अपन जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आज तक अपन जो फॉलो कर रहे हैं वो अपन क्या फॉलो कर रहे हैं, वो अपन ये लुका भाई जो दिया है, बराबर ना, लुका कुमार ने जो दिया है, ठीक है, उनका सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। ऑफ कोर्स देयर आर मॉडिफिकेशंस दैट कीप ऑन हैपनिंग, ठीक है, जैसे जैसे टाइम चले गया, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ट्रांजैक्शंस बढ़ते गए, ठीक है, वैसे वैसे इनमें चेंजेस होते गए, वैसे वैसे चेंजेस होते गए, एंड दे हैव केप्ट ऑन इवॉल्विंग, बट द फंडामेंटल, ठीक है, जो लुका डी बर्गो पैसोली ने दिया था, दैट स्टिल होल्ड्स ग्राउंड इवन टुडे, ठीक है, एंड दैट इज द एंटायर बेसिस ऑन विच द बुक कीपिंग इज बेस्ड, ठीक है। सर अभी ना आपने बुक कीपिंग इतनी बार बोल दिया ना सर, अभी हमको है ना एकदम जोर से क्यूरियोसिटी हो रहा है, अभी सर अब नहीं रहा जाता सर, अभी हमको ना बुक कीपिंग का डेफिनेशन एक काम करो, आप बता ही दो सर आप अभी अब ज्यादा मत तड़पाओ, बुक कीपिंग का डेफिनेशन हमको बता ही दो। चलो ठीक है, अभी मैं तुमको बुक कीपिंग का डेफिनेशन बता देता हूं, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है। अलग अलग लोग ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, ठीक है, सबका मतलब वही है, ठीक है, सब लोग कहना वही चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो रिश्ता वही सोच नहीं वाला बात है, ठीक है, रिश्ता वही है सोच नहीं है, सबका वर्डिंग्स अलग अलग है, जज्बात एक ही है, ठीक है ना, जाया करने का तरीका अलग अलग है, कोई सिंपल बता देता है, कोई थोड़ा सा घुमा के बताता है, और कोई तो शायरी लिख देता है ना, बराबर ना, कोई कोई सिंपल तरीके से प्लेन बताता है, कोई कोई थोड़ा घुमा के बताता है, कोई थोड़ा ट्विस्ट करके बताता है, ठीक है ना, कोई थोड़ा जार्गन ऐड करके बताता है, और कोई तो भाई शायरी लिख देता है सीधा, ठीक है ना, तो सब अलग अलग है, कहना वही चाहते हैं, ठीक है, कहना वही चाहते हैं। अपन एक एक करके रिकॉर्ड कर, अपन एक एक करके समझते हैं कि अपन एक दो लोग की बात पढ़ेंगे, ठीक है, अपन एक दो लोग, ज्यादा लोग पे फोकस नहीं करने का, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना, वैसे तो एक ही रखने का, लेकिन यहां पे अपन दो तक की इजाजत ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके हाँ, क्या है बुक कीपिंग का डेफिनेशन, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके चलो, सबसे पहले अपन किसका पढ़ेंगे, सबसे पहले देयर इज पर्सन कॉल्ड एज J.R. बाटली बॉय, J.R. बाटली बॉय, ठीक है। चलो, ही इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ गली बॉय,
ही इज ओनली अ J.R. बाटली बॉय. What did he have to say? इसका क्या बोलने का था? ठीक है, J.R. बाटली बॉय क्या बोलता है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट. सर हम तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं सर, हम कॉमर्स भी पढ़ रहे हैं, हम आर्ट्स भी पढ़ रहे हैं, अपन शाने लोग हैं, अपन सब पढ़ेंगे. आर्ट्स वाले कॉमर्स नहीं पढ़ेंगे, अपन आर्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये एक कला है. ठीक है, जो सबके बस की बात नहीं, ये कला है. ये बुक कीपिंग इज एन आर्ट. कौन सा आर्ट सर? मजनू भाई वाला आर्ट नहीं रे, मजनू भाई वाला आर्ट नहीं रे, तुम लोग बहक बहुत जाते हो. ठीक है, इस बुक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. हैंड राइटिंग थोड़ा मेरा कॉमेडी चपा है, 1 मिनट ना, थोड़ा रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ठीक है, इन अ सेट ऑफ बुक्स. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस और बिजनेस डीलिंग्स. ट्रांजैक्शन को उसने एक और वर्ड यूज किया है, ट्रांजैक्शन के बदले अपन ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज डीलिंग्स. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस और बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स. ठीक है, ये किसका डेफिनेशन है? J.R. बाटली बॉय. ठीक है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन और डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स. सर एक और बताओ ना, सर एक और बताओ ना, एक और बताते हैं. ठीक है, एक और बताते हैं. R.N. कार्टर. ठीक है सर, क्या हमको डेफिनेशन याद रखने पड़ेंगे? ऑब्वियसली यस. ठीक है, एक का डेफिनेशन तो याद रखना ही है तुमको. ठीक है, किसी भी एक का डेफिनेशन याद रख लोगे तो चलेगा. ठीक है, R.N. कार्टर मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा बाटली बॉय के कंपैरिजन में. लेकिन क्या बाटली बॉय अपने इंडिया के ना, पहले उनको लिख दिया. ठीक है ना, पहले उनको मान दे दिया, बाद में फॉलो अपन चाहे किसको भी करे. ठीक है, चलो. R.N. कार्टर ने एक और चीज मेंशन की है, थोड़ा सा उसको एलैबोरेट तरीके से बताया, तो इसको अपन फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, R.N. कार्टर जी क्या बोलते हैं? ठीक है ना, कार्टर कुमार क्या बोलते हैं? लेट अस सी व्हाट डज कार्टर कुमार से. कार्टर कुमार says that bookkeeping is the science. सर क्या आप मजाक कर रहे हो सर, कॉमर्स लिया है सर. ठीक है, बुक कीपिंग इज अ साइंस. सर साइंस भी? अरे साइंस भी है. ठीक है ना, एंड आर्ट. ओ माय गॉड, लेवल देख रहे हो तुम लोग, कॉमर्स आर्ट साइंस सब पढ़ेंगे अपन. ठीक है, बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ correctly recording. Bookkeeping is a science and art of correctly recording. समझ में आ गया? ये बेचारा बाटली बॉय क्या बोलता है? बाटली का बॉय क्या बोलता है कि भाई रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ बुक. बराबर ना. अभी तुम तो घोटाला मार के कैसे भी करके रिकॉर्ड कर डालोगे, तुम तो कैसे भी रिकॉर्ड कर डालोगे, बाद में गलती निकला तो तुमने क्या बोला? ए तुमने तो बोला था रिकॉर्ड करने का, किया ना, रोता क्या है अभी? ठीक है ना. अरे लेकिन रिकॉर्ड सही भी तो करना चाहिए. ठीक है, तो तू बोलेगा उसने ऐसा किधर लिखा है? बाटली बॉय बोला कि रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शन. समझ में आ गया? सही गलत क्या वो मेरे को मालूम नहीं, मैं जैसा समझा वैसा लिखा. टेक इट और लीव इट, टेक इट और लीव इट. ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं चलेगा ना. ठीक है, बाटली बॉय का भी इंटेंशन वो नहीं था कि तुम गलत भी रिकॉर्ड कर सकते हो, उसका भी इंटेंशन था कि तुम सही रिकॉर्ड करने चाहिए. लेकिन वो बेचारा वो बताना भूल गया. वो तो बोलता कि हाँ भाई वो तो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड करने का, तो ऑब्वियसली इट इज इंप्लाइड कि तुम सही रिकॉर्ड करोगे. ठीक है ना. लेकिन R.N. कार्टर जो है, ठीक है, R.N. कार्टर को मालूम है कि लोग पकड़ते. ठीक है, लोग पकड़ते कि नहीं करेक्टली बोला नहीं था तू, तो उसने बोल डाला भाई करेक्टली. इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग. in the books of accounts all those transactions, all those transactions that results in transfer of money
और किधर गया रे बाबा, that results in transfer of money or money's worth. ठीक है, थोड़ा काफी डिटेल में है, एग्जॉस्टिव है। ये सारी चीजें जो आर एन कार्टर बोल रहा है, ये सेम चीज बाटली बॉय भी बोलना चाहते थे, ठीक है, बट वो शब्दों में बयान नहीं कर पाए सब कुछ। समझ में आ गया? कुछ लोग एक्सप्रेस बयान ज्यादा अच्छे से करते हैं, आर एन कार्टर इज वन ऑफ देम। ठीक है, आर एन कार्टर जी क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग, ध्यान देना, तो करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोस ट्रांजैक्शंस that result in transfer of money or money's worth. ठीक है, that result in transfer of money or money's worth. सर मनीज वर्थ का मतलब क्या होता है बताते हैं, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है, बताऊंगा, सब डिस्कस होएगा, पूरा पैसा वसूल होएगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन आराम आराम से, ठीक है। अभी मैं सब बताने की कोशिश करेगा ना तो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे सही वक्त आते जाएगा वैसे वैसे अपन उसको बताते जाएंगे, ठीक है। जैसे हर 4 एक चौका होता है, वैसे हर चीज बताने का एक सही मौका होता है। क्या बोलते हो, बराबर के नहीं? चलो लवली, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आर एन कार्टर जी का डेफिनेशन हो गया। अब ये डेफिनेशन से क्या निकल के आता है, ये डेफिनेशन से क्या एनालिसिस निकल के आता है? अगर तुमको पूछा कि सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है वो तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, कि इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा चीज यहां पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र किया है उन्होंने, जो अपने को भी पता होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। इससे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आता है बुक कीपिंग का दोस्तों। उस बुक कीपिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आता है जो ये है, दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर dealing in money or money's worth, only those transactions can be recorded friends, ठीक है ना। हर वो ट्रांजैक्शन या ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिनको तुम मॉनेटरी टर्म्स में इवैल्यूएट नहीं कर सकते, जिनको तुम मॉनेटरी टर्म्स में इवैल्यूएट नहीं कर सकते, ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया? सम थिंग्स और some events do not have price, ठीक है, because they are priceless, है ना। तो ऐसी जो चीजें होती है उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ठीक है ना। हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम जिंदगी भर अपने पेरेंट्स के कर्जदार है, ठीक है ना, लेकिन वो कितने का कर्जदार है वो मालूम है क्या आपने को? कितने का कर्जा है? आज तक तुम्हारी मां ने तुमको 1.5 करोड़ का प्यार किया है, ऐसा बोल सकते हो क्या तुम? ऐसा नहीं बोल सकता ना तुम, है ना। आज तक मेरे पापा ने मेरे को 50 लाख का चमाट मारा है, ऐसा बोल सकते हो तुम? ठीक है ना। तो वो जो इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है ना, जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, और भी काफी सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। तू मेरे को ये गुड्स दे, ठीक है, उसके बदले में क्या दूंगा? मैं तेरे को अपना बेस्ट विशेस दूंगा ना यार, बस क्या यार, दुआ दूंगा, दुआ बस नहीं हो गया क्या? ठीक है, दुआ दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, मेरा बेस्ट विशेस दूंगा, ठीक है ना। बट ये सबसे काम नहीं चलता ना, ये सबसे पेट नहीं भरता है, पापी पेट पैसा मांगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? तो ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी रिकॉर्डेड इन मनी और मनी इज वर्थ, ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, दे विल बी रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, दे विल बी रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, इन द सिस्टमैटिक मैनर। व्हाट इज द सिस्टमैटिक मैनर? When I say that it is a systematic manner, it follows a certain procedure and therefore we can say that it is a science, ठीक है ना। therefore it is a science, क्योंकि साइंस में क्या होता है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, हर एक चीज का एक मेथड होता है, ठीक है ना। तो यहां पे भी प्रोसेस है, यहां पे भी मेथड है, इसीलिए वो साइंस है। समझ में आ गया? सर आर्ट कैसे? आर्ट क्या है? इसमें क्वालिटी जजमेंट भी होना चाहिए कि ये चीज रिकॉर्ड करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये इतने पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, इतने पे रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, ये इस तरीके से रिकॉर्ड होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो रूल्स ले डाउन करने के बाद भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे कंफ्यूजन अराइज होता है, बराबर ना। तो वो कंफ्यूजन को किस तरीके से इंटरप्रेट करने का, किस तरीके से इंटरप्रेट करने का और किस तरीके से उसको करेक्टली रिकॉर्ड करने का, ये एक आर्ट भी है। समझ में आ गया? सो इट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट स्टडीड इन कॉमर्स, ठीक है।
of recording the transaction in a systematic way, correctly recording the transaction in a systematic way which involves transfer of money or money's worth. It is prepared for the period of 12 months. ठीक है, so after every 12 months you record all the expenses, income, asset, liability, सब कुछ record करेंगे. कैसे? सिस्टमैटिक तरीके से. और किस तरीके से? करेक्टली. ठीक है, और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जिनका पैसों में मेजरमेंट किया जा सकता है. ठीक है, ये भी जो चीज मैंने तुमको बोली ना फ्रेंड्स, ये भी जो मैंने चीज बोली तुमको कि सिर्फ पैसे में रिकॉर्ड होने वाले ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, इसके रिलेटेड एक और कंसेप्ट है अकाउंट्स में जो मैंने तुमको ऑलरेडी समझा दिया है, वापस जिक्र होगा बाद में, बट अभी यहां पे बात हुई है तो बता देता हूं. ठीक है, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट इन अकाउंटेंसी विच इज कॉल्ड एज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अकाउंटेंसी अपने को एकदम क्लियर बोलता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जिनका वैल्यू तुम मॉनेटरी टर्म्स में डिसाइड कर सकते हो. अगर उसका पैसे में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, अगर वो पैसे में उसको तोला नहीं जा सकता है, तो फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा भी नहीं जा सकता है. समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गई किसकी बात? बुक कीपिंग का डेफिनेशन हो गया, बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस हो गया, बुक कीपिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंस हो गए. टू नो द प्रॉफिट और लॉस, टू नो द एसेट एंड लायबिलिटी, टू नो द एक्सपेंसेस एंड इनकम, टू नो द टैक्स लायबिलिटी, टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस. टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस कितना हुआ, कैसे हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है, ये सब इवैल्यूएशन करने के लिए डेटा चाहिए, रिकॉर्ड्स चाहिए. समझ में आ गया? एनालाइजिंग वेदर द बिजनेस इज फीजिबल और नॉट. ठीक है, अगर प्रॉफिट हो भी रहा है लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम कम होते जा रहा है, अब ये बिजनेस में अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कम हो रहा है, बिजनेस का डाउनफॉल आ रहा है, कुछ तो एनालाइज करोगे ना डेटा को यूज करके. तो वो एनालिसिस के भाई जो बिजनेस पहले प्रॉफिटेबल था, अब कहीं वो बिजनेस पे खतरा तो नहीं आ चुका है, क्या हमको बिजनेस में कोई एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन या फिर कुछ क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है. ठीक है, ये सारे जो डिसीजन मेकिंग होता है, ये सारे डिसीजन मेकिंग किसके लिए चाहिए? ठीक है ना, तो ऐसा गट फीलिंग बोलेगा कि नहीं नहीं अपन अपने दिल से डिसाइड करते हैं, दिल से. ठीक है ना, ऐसा दिल से डिसाइड करने का बात बराबर है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ दिल से डिसाइड नहीं करने का. समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें सिर्फ दिल से डिसाइड करके पछता रहे हो ना. समझ में आ गया? अभी मेरे को बताओ मत वो किस बारे में है, बट ऐसा है ना, समझ गए ना तुम लोग इंडिविजुअली, बराबर ना. तो हर डिसीजन दिल से नहीं जा सकता, दिमाग से भी लिया जा सकता है. और दिमाग कब चलेगा? जब दिमाग नंबर देखेगा, दिमाग डेटा देखेगा. और दिमाग डेटा कब देखेगा? जब तूने उसको रिकॉर्ड किया रहेगा. ठीक है ना, दिमाग उससे लॉजिकल कंक्लूजन कब ड्रॉ करेगा? जब वो डेटा सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड हुआ होगा. समझ में आ गया? और उसी सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, इस चीज को हम बुलाते हैं बुक कीपिंग. आर यू वेरी क्लियर विद दिस फ्रेंड्स?